informs the PCIT if the person is dead. Now, if the PCIT proceeds with the 263 on a deceased person after the information, then that order is null and void. However, if the PCIT, after being made aware that the person assessee is deceased, issues a fresh notice within the limitation period on all the legal heirs, then the proceedings can become legal. So this is the stand of the Delhi High Court also in the case of Savita Kapila, though that was a case of 148. तो क्या है कि once an assessee is no more, then proceedings under section 263 or any proceedings are illegal. Only legal representatives can be called upon to now, friends, 2-3 more issues. They are from Supreme Court, dismissal of SLPs. Now, in one case, the PCIT resorted to 263. 263 or 148 आजकल main issues हैं in the armory of the department. Wherever the PCIT does not agree with the view of the AO, he starts 263 if the limitation is available. और limitation का भी इन्होंने टाइम बढ़ा ही दिया हुआ, एक साल ज्यादा कर दिया. तो इस केस में क्या था कि दिस इज a केस ऑफ PCIT वर्सेस HTL कि एक 263 हो गया बिकॉज द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बिलो द 50C स्टैम्प ड्यूटी रेट. The matter traveled right up to the Supreme Court. High Court had also given in favor of the assessee. So, इस केस में it was a distress sale. The assessee had been subjected to SARFACI proceedings, recovery proceedings for recovery of loans, etc. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन circumstances में 50C नहीं लगेगा. Whatever rate they have got, that is through public notice, through auction, and therefore 50C is not applicable, and they dismiss the SLP. नेक्स्ट एक और है इसी तरह का, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है. दिस इज नॉट SLP. हियर आल्सो इट इज द सेम थिंग. अब सारे हाई कोर्ट सेम बोल रहे हैं. व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट डू? वन डजंट नो. कि फेसलेस को ही नोटिस इशू करना चाहिए 148A का भी, ए प्रोसीडिंग्स एंड 148. तो दिस इज लेटेस्ट जजमेंट ऑफ August 14 by Punjab and Haryana High Court in the case of Sandeep Kumar Gupta, where they have said where the notice is not issued by the faceless assessment in accordance with section 151 or 144B के हिसाब से, then that is quashed. तो पंजाब और हरियाणा में कह दिया, बॉम्बे ने कह दिया, सारे लोगों ने काफी जगह कह दिया है. Now an interesting issue is there which is before the Supreme Court. But indirectly, Delhi High Court and Bombay High Court have answered in favor of the SST. That is, whether 1314 and 1415 are time barred or not after the judgment of Ashish Agarwal. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है मंजू सोमानी के केस में. रिसेंट है, जस्ट अबाउट 15 डेज बैक. वो केस तो 16/17 का था, पर उन्होंने ये बोला कि भाई 16/17 टाइम बार हो चुका है, बिकॉज एज पर द अमेंडेड प्रोविजंस, वंस द न्यू प्रोविजंस किक इन, दे से कि उतने ही सालों का नोटिस इशू हो सकता है जितने सालों का पुराने प्रोविजन में हो सकता था. तो दे हैव हेल्ड इन फेवर ऑफ द SSC एंड क्वैश्ड द नोटिस फॉर
1617, and Bombay High Court has also done the same thing in the case of Bhumi Viral Shah. तो ये almost indirectly clear हो गया because Delhi High Court had given a judgment earlier about 1.5 years ago कि no, that is legal. 13-14 का 14-15 का इशू हो सकता है on the basis of the circular issued during the COVID time, whereas other high courts had held against it. तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली उस जजमेंट को भी बता दिया है कि दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, बट द अर्लियर जजमेंट्स आर इन सुप्रीम कोर्ट, जिसकी हियरिंग भी हो चुकी है, बट फाइनल ऑर्डर इज स्टिल अवेटेड. Now another interesting judgment from Delhi High Court वो ये है कि if some credit is appearing in the TDS account in 26 years which has not been claimed in the return of income, whether that credit, TDS credit, is allowable to the assessee or not. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है एस सिंगापुर ब्रांच वर्सेस DCIT, ये 22 अगस्त की जजमेंट है. तो दे हैव सेड कि वेयर the credit is there in the TDS as per form 26AS. So irrespective whether the assessee has claimed that in the return or not, that is immaterial. वो उसको credit मिलना चाहिए along with the interest. So they have allowed that in the case of this assessee. अब वैसे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, बट हाउ फार इट विल सस्टेन, दो इट इज डिलीवर्ड बाय ट्राइब्यूनल इन बॉम्बे ऑन लीगल प्रिंसिपल्स इन द केस ऑफ पेनी स्टॉक. अब पेनी स्टॉक के जितने भी ऑर्डर हैं मोस्टली दे स्पीक ऑफ सर्वे ऑन कैलकटा ब्रोकर्स और कैलकटा ब्रोकर्स स्टेटमेंट, एंड they being instrumental in manipulating the share prices on the stock exchange and giving the accommodation entry of capital gains, which is exempt. अब in this case में प्रकाश मल राज जैन का नाम है केस का. The tribunal says कि without any inquiry on the papers submitted by the assessee, without independent inquiry, general inquiry on the basis of survey conducted on Calcutta brokers or any other third party, the addition is not sustainable. And they have cited the judgments of two of the Bombay High Courts, which also say independent inquiry should not be done. In fact, I got hold of one judgment of GST, which is equally applicable in income tax, in which the GST levied tax, GST tax, on the basis of a report from the income tax department of certain concealment of income, which was without independent verification. It was on the basis of a survey without conclusion of the inquiry even by the income tax department, so that was deleted. So the principle that the courts have laid down is that irrespective of the general survey or general modus operandi, unless an independent inquiry is conducted by the department, income tax department, against the affairs of the assessee, no addition should be made. And this, of course, is now established fact. Again, Delhi High Court has said this in Karina Airlines International, that in the case of 153C, the 6 years plus 1 year will begin from the date of handing over of the documents to the assessee, who is other than the searched person, to the officer of that person, that they have already said in
flow more and 2-3 other cases. So this now seems to be established by Delhi High Court. Now there is a lot of litigation in all tribunals regarding Form 67. Now Form 67, if filed up to the end of the assessment year, the CBDT had come out with a notification in August 22 that if it is filed not with the return of income, if it is filed up to the end of the assessment year, then claim of foreign taxes should be allowed. But all the tribunals are clear except one tribunal judgment of Visakhapatnam, which is of quite earlier date, Delhi Tribunal, Bombay, Jaipur, that it is not mandatory to file the Form 67 along with the along with the return of income. Even if it is filed late, there is no bar to claiming foreign taxes credit, since the DTA does not have any condition also for filing Form 67, and DTA overrides the domestic law, and also domestic law also they have held that the filing of Form 67 is not a compulsory requirement. It can be filed anytime, even during rectification. And in that scenario, the credit of foreign taxes should be allowed to the assessee. Friends, with these remarks, I would like to hand over to Vijay. I think Vijay has joined, and I welcome Vijay. Yeah. Thank you, Stacey. Thanks for your nice deliberation and your words of wisdom, which you had shared with us. And specifically, I'm thanking you both, C.A. Vejayanji and C.A. Satish Agarwal ji. Yesterday we had a teacher day, and once again, I'm thanking you both. Thank you, sir, for imparting your valuable knowledge and wisdoms to all of us and making us more wiser. I'm really very thankful to both of you, and to all of, again, I'm very thankful to all my friends who are joining in our large number and making me bit wise in person in specific. Thank you all, friends, and thank you, Stacey. Please stay back. Over to Vejayanji. Thank you. Thank you, Vinodji. Good evening, friends. Welcome to all of this program, and compliment to Vejayanji for organizing this program and continuing the legacy which we started long time back. I believe 1985, 86, 7, somewhere we started it. Forgot the date now, but at least it is now almost more than 35 years. I can assure you that the program is going on this issue. I had the pleasure of listening to Satish in the last part. But I could not hear others because I believe a lot of debate was going on on the GST and other issues, etc. I am very happy to see participation in a large number. I can see the 84 participants here today in the program are coming up. But this gives me an indication how many of you are busy in tax audit. You're all free because this is a season of tax audit, and today we are on 6th of September. I will be working, I think, at least 18 hours, not more than that, if you would say. सर ये मीटिंग जो है ना, ये रिलैक्सेशन देती है, तो बिजी शेड्यूल में कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। किसी ने टैक्स ऑडिट का सवाल ही नहीं पूछा, मुझे चिंता थी सबसे पहला सवाल ये आएगा क्या करें एमएसएमई का। किसी ने भी ना सतीश जी पूछा, किसी से नहीं पूछा कोई सवाल। 194 आर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं डाउट कि हुआ क्या चल रहा है ना सर। आज किसी को चिंता ही नहीं है कि भाई क्लाइंट की एमएसएमई में क्या रिपोर्टिंग करनी है 43 बीएच में, किसी ने पूछा ही नहीं कोई सवाल। उसमें सबने हल निकाल लिए लगता है। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हल निकला, ये तो बता दो मुझे भी भाई, क्या पता लगा कि क्या क्या किया। दिनेश जोशी देखो अपना ना, वो कैमरा ऑन करके कहीं दूर जगह पे चले बैठ गए। चलो ठीक है, ये भी नजर नहीं आ रहा ना दिनेश जोशी कहाँ है। और तो कभी कभी ऑफिस में घूमना भी चाहिए सर, एक जगह बैठे बैठे भी दिक्कत हो जाती है फिर। नहीं, अब आ गए, नजर आ गए मुझे।
I can make it out now. I believe participation के हिसाब से कुछ लोगों के कैमरे ऑफ हैं, but I will make sure they get on the all cameras. संजीव रस्तोगी जी, I am putting it out on that way. कुछ लोगों के जब कैमरे ऑन, कैमरे तो ऑन रखने चाहिए, पता तो लगे ना कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कि किस काम में आ रहा है इसमें आ रहा है। अब आज का आज नहीं, आज क्या हुआ कि ये सुबह वो पहले मीटिंग शुरू होने के टाइम में मैंने बोल दिया तो कहने लगे ये तो जैन साहब का वो वचन है, तो आपने क्यों प्रयोग कर लिया। मैं क्या, कभी कभी बड़ों से कुछ सीख ले लेनी चाहिए और उनके आने से पहले प्लेटफॉर्म को सजा देना चाहिए। और डू यू सर, वेरी गुड। नहीं, आज की डेट पर इनकम टैक्स में मैं पूछा था टैक्स ऑडिट का क्या हो रहा है। दिस इज द फीडबैक आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि कितना ऑडिट हो गया, कितना काम चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें। बात ये am I audible? या प्लीज विपुल जी प्लीज। सर नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। हाँ सर, ये जो टैक्स ऑडिट का काम है थोड़े स्लो पेस पे चल रहा है। 43 BH की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत लोगों ने अपना ठीक कर लिया है। जो बुक्स हैं लास्ट ईयर में जब इतनी अवेयरनेस हो गई थी क्लाइंट्स को, तो बड़े क्लाइंटों ने तो सबने ठीक कर लिया है। कुछ के लोग 10% लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने 43 BH को कंप्लाई नहीं कर सके, तो उनके केसों में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी केसों में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनसे सर्टिफिकेट्स मंगवाने पड़ते हैं, डिक्लेरेशन मंगवानी पड़ती है। 10, 15, 20% केसेस में प्रॉब्लम आ रही है। 80% प्रॉब्लम केसेस में प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम हैंडल हो गई ना, मतलब फिर तो समस्या हल हो गई ना। 80% इज गुड हैंडल। अब 20% केसेस में क्या करना है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग छोटा सा सस्ती है जिसका 70 लाख की पेमेंट नहीं की उसने, तो अब उसका क्या करना है। वो दैट इज समथिंग व्हिच इज unanswerable kind of. He will not be able to pay the taxes. छोटा सा सेसी है तो उसको ऑडिट कराने की कहां जरूरत पड़ गई। वो तो निकल जाना चाहिए, ऑडिट बन जाती है सर। 2 करोड़ पे भी तो ऑडिट बन जाती है। 2 करोड़ छोटा ही होता है सर सेल। नहीं कैश में काम करता है क्या? कैश में काम नहीं है तो 10 करोड़ तक चला जाएगा ना। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है 10 करोड़ तक चला जाएगा, लेकिन उसकी कैश में काम है ना सर। 10 करोड़ वाले को बड़ा मान रहे हैं क्या? हाँ जी, 10 करोड़ वाले को बड़ा मान रहे हैं कि छोटा मान रहे हैं, पहले ये तो डिसाइड करो। सर मेरा ख्याल है कि आज की डेट के हिसाब से 10 करोड़ से ऊपर वाला ही बड़ा है। 5 करोड़ से ऊपर वाला या 10 करोड़ से ऊपर वाला मेरे हिसाब से सर। ये जो अब ऑडिट चल रही है ना, टैक्स ऑडिट, विपुल जी, ये तो फिर मैं हो गया कि इंडिया की ग्रोथ तो हो गई इकोनॉमी की। 10 करोड़ से ऊपर वाला पड़ा तो सर अब देखिए, हम सीनियर लोग हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमें एक्चुअली फर्क शायद नहीं पड़ता, नए लड़कों को फर्क पड़ता है कि जो टैक्स ऑडिट है वो टोटल मिला के 25 करोड़ के ऊपर कर देना चाहिए। उसके नीचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्स ऑडिट का बर्डन और कंप्लायंस का बर्डन जो है वो लोग नहीं ले सकते। विपुल जी, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन है, झंडा मैं ऐसे कह दूंगा, किसी कैंडिडेट की दुकान उठवा दोगे, आप हालत खराब कर दोगे। सर उनकी तो कोई मानता नहीं है सर, उनकी तो कोई मानता नहीं है। हम आप कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, टैक्स ऑडिट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। इट हैज हेल्प्ड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ए लॉट। It has helped the SECI in improving its accounting. So ऐसा नहीं है, उसमें आराम मिला है लोगों को और it has served its purpose। ठीक है, छोटे लोगों को छोड़ दो, छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं, that's not the issue। इसी the question is, the unorganized sector does not mean that they have a liberty to declare the income which is not in true income. So that's a challenge which need to be kept in mind, and they have to fall in the organized sector and they have to have a good accounting। और उससे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, उसी से बैंक की लोन लिमिट वगैरह सारी बनती है। अगर वो अनऑर्गेनाइज में रहेंगे तो कभी ग्रो ही नहीं करेंगे। तो दे हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, मेक इट वायबल। और आपने देखा होगा कि अभी रिजर्व बैंक ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जो पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ है यूपीआई के चैलेंज पे, जिससे वो यूनिक लैंडिंग वाला जो इंटरफेस लेकर आ रहे हैं, that will make the tax audit more relevant। Frankly, I started with that will show you that all these financial statement will be part of that what we call as a database। So as and when you apply any loan, etc., you just go to the on the site that like the UPI, show your that what we call scan, this is my number, everything will be visible to the lender and he can immediately take a decision that whether you are eligible and how much loan is you are eligible and what are your documents। So your all tax audit, GST returns, your bank statement, all will be available, and credibility will get it। Because you see, when this CRISIL rating etc. is done and this credit rating is done,
one of the feature which they pointed out, how many checks have bounced from the bank account for part of payment. That's one of the criteria to decide कि yes, the person is managing the affair very well. Similarly, it will depend on the transaction taking place, how much those are looks to be genuine transaction on that part. And I can just share you the experience which we had in the last 15-20 days. You would have seen now 148 notices coming across. One interesting feature which I could see, probably subject to test by the now judicial review, that in case you have dealt with a person, the transaction which you have entered into with that person may be genuine, actual transaction. But in case that person is involved in dubious transaction, your case has been reopened. They say that this person we find has done a transaction with the other person which is not genuine. So we believe the transaction with you are also not genuine. So now KYC has to be made sure by the not only of your supplier but also of your buyer also, whenever you're making a transaction. So that's a very important aspect. Now coming on this issue, because I have shared one, I think my WhatsApp message to all of you. एक मिनट sir. I have shared WhatsApp message with all of you on the issue that reopening has been done en masse by the department in the last month of August. Now, there are two interesting aspects to it. Finance Minister sends in the parliament and she says that I want to reduce litigation. I am curtailing the period from 10 years to 5 years. This is the message. Now, of course, it comes into effect from 1st September. That does not mean that gives a license to the department that reopen all old cases so the date is expiring on 31st August. So now a person whose notice comes on 31st August is an unlucky person. A person whose notice comes on 1st September is a lucky person. Because limitation, once you have taken a policy decision and you announce in the parliament budget, that means that yes, forget about old cases. Why you are digging it out? All cases. I believe thousands of cases have been reopened of assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, and the last month of August only. I believe you would have received all those notices also. So many of the clients you would have received notices on the issue. And my view is very clear that all these notices are barred by limitation. 17-18 assessment year became barred on 31st March 24. 36 years have elapsed. And nowhere these notices can survive on any ground. The law 149 1B proviso was very clear that 6-year period is to be counted under the old law and it has to be tested on the day when notice is to be given. And now another is, now as on date, 17-18 is time barred. So up to 31st March, 18-19 is time barred today because now 5-year period has become. So whatever transaction has happened up to 31st March 18, no notice can be issued under section 148 or any other provision. No. Even in case of search which takes place after 1st September 2024, period up to 31st March 18 is totally blocked. That's a working which is very clarity on that issue. Now, if you have any doubt on this issue of 148 or no notices on that part on these issues. But sir, the idea is there is certain apprehension out there in the fraternity कि वो ये कह रहे हैं कि ये नोटिस तो इशू कर दिया, अब इनका आपने तो कह दिया कि आप तो हमेशा कहते ही हो कि ये टाइम बार्ड हैं. Now the cases are open now. Ultimately, what remedy they do have? Do they need to challenge the High Court through a writ petition or? भाई रिट में कर दूंगा, इमीडिएटली रिलीफ आएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट के रेगुलर प्रोसेस करना पड़ेगा. उसमें बहुत क्लैरिटी है. जब सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने केसेस के आर्गुमेंट चल रहे हैं वहां डिपार्टमेंट का खुद का स्टैंड है ये कि भाई हमारे ये 15, 16, 17 टाइम बार हो रहे थे 31 मार्च 20 को और 21 को, इसलिए हमने इसको रिओपन का हमारे पर तोला लगता है, इसलिए हमें एक्सटेंशन मिल रही. डिपार्टमेंट से कैसे रिलीफ आएगा सर अपने आप अगर रेट नहीं किया तो ऐसा है कि आप शेयर से सोचोगे वो छोड़ देगा आपको, वो तो पॉसिबल नहीं है. मतलब जो आपने तो आपको तो लड़ना ही पड़ेगा. आपके पास दो तलवारें, दो तीर हैं. या तो आप मचान पे चढ़ के उसे घेर लो ऊपर से, और नहीं तो सामने जाके टक्कर दो उसको, देखेंगे वे लड़ेंगे. तो दोनों शो कॉज का रिप्लाई दिया, उनको बताया कि टाइम बारिंग है. वो तो उनका कह रहा है ना कि मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई है कर दो.
क्योंकि क्या है कि एक आदमी ने कहीं लिख दिया फाइल के ऊपर, उन्हें सारे ऑल इंडिया में नोटिस इशू करा दी। दे डोंट एग्री, उसने 148 भेज दिया आई आपने। एग्री, इससे लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस और लॉट ऑफ पेन ऑन द क्लाइंट। क्लाइंट सफर कर रहा है बहुत सारा इस बारे में, इसके बारे में। So, as per you, there are two options. Either one should go on writ petition, and there is a good fair chances to get through with those proceedings. देखो, अगर सिंपल जिसको 148 एडी का ऑर्डर और 148 का नोटिस हुआ है, सर से रिलेटेड नहीं है, और उसको असेसमेंट ईयर 17-18 का और उससे पहले का कोई नोटिस आया है अगस्त के 2024 के अंदर, वो इनवैलिड है, कोई सर्वाइवल नहीं है। Direct search से related या indirect search से? नहीं, इनडायरेक्ट वो देन यू हैव टू एग्जामिन इट कि वो ए में जा रहा है, सी में जा रहा है, क्योंकि वो नया प्रोविजन। Correct. That's the point. That's वो थोड़ा सा एग्जामिन करने वाला पॉइंट है। हालांकि उसमें भी मेरी 90% चांस है कि वो टाइम बार में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट का मैंडेट कुछ और है इसके बारे में। So, means thereby कि if the amount is good and one can contest, सर लेकिन वो तो वहाँ पे सबमिशन फाइल करके तब भी पैरेलल में कंटेस्ट रेट पिटिशन में तो कर ही सकते हैं वो तो। ना नहीं, एक और ध्यान रखने का है, जहां भी 148 नोटिस आ गए तो आप रिटर्न तो इमीडिएटली जरूर फाइल कर दें। सर वो 3 मंथ्स का टाइम दे ही रहा है एनीवे सब तो। 3 महीने का टाइम दे या नहीं दे, कानून लॉ में आज की डेट में ये कह दिया कि अगर आपकी रिटर्न लेट हो गई तो वो रिटर्न विल बी इनवैलिड, और रिटर्न फाइल करने से आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता नहीं है, करेक्ट। सो कंप्लायंस तो आपको करना है, ये वाला तो 3 वो मंथ्स आपकी चॉइस है। आप रिटर्न फाइल कर दीजिए सेम इनकम जो आपने डिक्लेयर की हुई है, और साथ में एक लेटर दे दीजिए कि योर नोटिस इज बैड इन लॉ, इलीगल, बार्ड बाय लिमिटेशन, विदाउट जुडिक्शन। 4 वर्ड आप डाल दीजिए उसके अंदर। And as a matter of statutory compliance, we have filed the return by acknowledgement number so and so on such and such date under protest. और साथ में रिट पिटिशन में जाएं फिर। हाँ, I believe my suggestion will be that it will be the better course for that purpose. If you want to finish off the agenda immediately. So the department want to keep High Court busy that way. नहीं, वो बिजी तो मतलब हाई कोर्ट क्या बना, यानी कि वो सबको काम बांटता है, बेरोजगार वालों को रोजगार, कुछ ना कुछ काम बांटना जरूरी है। ये हाई कोर्ट में जो जाते हैं ये बेरोजगार, ऐसी बेरोजगारी तो देश में भाई क्या है कि कहीं ना कहीं अपने आप को उनको बिजी रखना है। हाँ वो ठीक है। फेसलेस हो गया तो क्या करेंगे अब। अभी तक सतीश जी ने एक इशू छेड़ा था फेसलेस वाला, और वो बहुत सारी हाईकोर्ट आ गई 151A में कि भाई 148 का नोटिस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर ही दे सकता है, और जुडिक्शियल असेसिंग ऑफिसर नहीं देता। करेक्ट। आजकल हम इसको फाओ वर्सेस जाओ कहते हैं। अच्छा, फाओ वर्सेस जाओ, करेक्ट। फेसलेस असेसिंग ऑफिसर पास फाओ, जुडिक्शियल असेसमेंट होता है। तो कोर्ट में भी यही वर्ड होता है, फाओ वर्सेस जाओ। जैसे खड़े होते हैं कि आपका केस क्या फाओ वर्सेस जाओ का है। तो हाईकोर्ट ने दे दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट इस मैटर को सुन रही है, आज की डेट में चल रहा है, और भाई 12 सितंबर को केस लगाया हुआ है, क्योंकि उसमें शायद डिपार्टमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करो कि आपका क्या कहना है, जो आपने नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये शायद 119 में नहीं किया, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा इसके बारे में, इसके लिए के बारे में। सर ये जो अभी भी नोटिस इशू किए हैं अगस्त में डिपार्टमेंट ने, ये भी जाओ ने किए हैं, फाओ ने नहीं किए हैं। 148 जो भी आया है ये जाओ ने किया है। मैंने उनसे पूछा भी, यार मैंने कहा अब तो जजमेंट्स आ गई हैं फिर भी आप नोटिस इशू करी जा रहे हो, तो वो कहते जी वो हमने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये वाली बात। मतलब उन्होंने चैलेंज चल रहा है, आई डू एग्री, चैलेंज चल रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग देखो, अगर ये हाईकोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड हो गया तो डिपार्टमेंट के सारे 5 साल में सारे फेल हो जाएंगे, 4 साल के सारे फेल हो जाएंगे। हाँ बेटा, ठीक है सर। वो अपना अच्छा सर मैं भेज दे तो लड़के क्या। सर 1 मिनट, इनको जहाँ म्यूट करना पड़ेगा। कर दिया। जय सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। हाँ जी अरुण जी बताइए। सर एक पीछे जो ये कैपिटल गेन का टैक्सेशन का सर बजट से जो चेंज हुआ था, जो उसके बाद झमेला हुआ, डिपार्टमेंट ने सर लास्ट मंथ एक वो प्रेस रिलीज इशू कर दिया कि कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी अलाउ नहीं करेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ये कोई प्रेस रिलीज ऐसी इशू नहीं की गई है, सिर्फ रेवेन्यू सेक्रेटरी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। उन्होंने उनसे ऑफ एंड क्वेश्चन पूछा तो उनका कहा भाई खर्चे नहीं मिलेंगे, तो दैट वाज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉस्ट के अंदर जो भी नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट पड़ती है वो सारे मिलेंगे।
क्योंकि सर परचेज स्टैम्प पेपर तो सर बेसिक कॉस्ट है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। मैं कह तो रहा हूँ वो नहीं है ऐसा कि मिलेगी आपको, स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी आप। थैंक यू सर। वो एक मिनट जैन साहब, हाँ जी, जैन साहब मेरी एक क्वेरी है हाँ जी, जी सर। क्या ये अग्रवाल जी। अभी जो, हाँ जी, अगस्त में ये जो ऑर्डर इशू हुए 148, ये मार्च 22 के अंदर भी सेम नोटिस इशू हुआ था, उसका रिप्लाई दे दिया था, वो वहां पे तो नोट 148 इशू नहीं हुआ। अब दोबारा से 10 साल बाद फिर मेरे को जाना है, आप दोबारा से इशू कर दिया। हमने उनको दिखाया कि भाई हमने पहले भी दिया था, आपकी तरफ से नोटिस हुआ नहीं, खुला नहीं। उन्होंने सारे देख के उन्होंने अपने आप फिर दोबारा नोटिस खोल दिया है सर, वो ऑर्डर इशू कर दिया, उसे कंसीडर ही नहीं किया जी, कि वो क्लोज तो हुआ नहीं था जी ऑर्डर, वो तो ओपन रहा। टाइम आउट। नहीं ओपन तो नहीं रहा। अगर 22 में आपको 148 ए बी देख के रेडी नहीं हुआ, इसका मतलब इट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ फिट केस। हाँ, Yes. वही। ऑब्वियसली नाउ एन असेसिंग ऑफिसर डज नॉट हैव अ राइट टू रिव्यू द ऑर्डर। आप चैलेंज कर दो, आप जीत जाएंगे। तो सर ये रिट का ही केस बनेगा या यहाँ ये नीचे पे अभी इन्होंने जस्ट किया? भाई यहाँ तो सुनने वाला अपील में सीआईटी अपील से लड़ते रहना, वो लंबे एक्सरसाइज है। जी सर 151 में सर मेरे केस में एक मिनट हाँ सुभाष जी प्लीज। सॉरी एक मिनट मेरे केस में सेम सिचुएशन थी। उसमें लास्ट टाइम उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, हमारे पास नोटिस ऑर्डर आ गया था, और अब फिर दोबारा वो नोटिस की तैयारी कर रहा था, तो उसके बाद वो ऑर्डर नहीं था, मैंने ऑर्डर की कॉपी भेज दी, तो उसने चुप करके ड्रॉप कर दिया, पर उसने आगे एक्शन नहीं लिया। नहीं देखो खुराना जी, आपके केस में आपके पास शायद पुराना ऑर्डर था जहाँ ड्रॉप हुआ था। जी इनके पास ऑर्डर ड्रॉप करने का नहीं है, इनके पास नोटिस आया, जवाब दिया, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर नहीं हुआ पास। डिफरेंस डी का खुराना जी, डी का ऑर्डर नहीं है ना। वो कह रहा है कि मैंने प्रोसीडिंग लाइव रखी, तुम लाइव करने वाले तुम थोड़ा कि तुम लाइव नहीं रख सकते, लाइव नहीं हो सकता वो। लाइव नहीं रह सकती। एनीवे सुभाष जैन जी प्लीज, और उसके बाद महेश बंसल जी। सर जब 151 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया है डिपार्टमेंट, ऐसे जो जाओ ने नोटिस इशू किए हैं, अभी हमें रिट में जाना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए? रिट में जाते हैं तो क्वैश कराए पंजाब हाई कोर्ट से, या हमें वेट कर लेना चाहिए कि अदरवाइज एसएससी का खर्चा ही होता है बेसिकली? ये तो देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। वो रिट में नोटिस इशू हो गया है, उस ऑर्डर पे स्टे नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट में। तो आज की डेट में तो भाई देखो ऑब्वियसली वन कंटेंशन विल बी कि आप इसको किसी तरह से हाई कोर्ट से, क्योंकि आपकी पंजाब हाई कोर्ट तो खड़े खड़े इमीडिएटली कर रही है, J1 पे कर देती है। जी सर, तो मतलब क्वैश करा लेना चाहिए, आपकी सलाह ये है? करा सकते हैं करा, लेकिन उसमें एक रिस्क है। पंजाब हाई कोर्ट ये कह रही है आपकी बाकी राइट एंड कंडीशन आर नॉट प्रेस्ड, तो वो देखना पड़ेगा कि आपके बाकी और कोई ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है क्या, क्योंकि मुझे अप्रीहेंशन है शायद ये ऑर्डर रिवर्स होगा सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, राइट सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नोटिस इश्यूड बाय जाओ विल बी दे विल अपील दैट। ऐसा है कि जब ये डिपार्टमेंट वहां जाके चिल्लाता है कि 1 लाख नोटिस एसएससी निकल जाएंगे हाथ से, ये हो गया वो हो गया, टेक्निकल ये है वो है, तो सुप्रीम कोर्ट हमदर्दी, उसमें भी जो पुराने नोटिस फंसे हैं वो यही तो झगड़ा है। अभी जो जजमेंट रिजर्व है उसमें हमें यही तो रिस्क नजर आ रहा है कि आखिरी दिन डिपार्टमेंट ने यही प्रेयर करी कि साहब द होल एक्सरसाइज विल बिकम फर्टाइल बिकॉज ऑफ दिस, सो प्लीज सेव अस। नहीं तो फिर नए को इशू कर रहे हैं। हाँ जी, Why are they issuing new also by JAO? भाई सवाल तो ये है ना कि अल्टीमेटली यू नीड ए गट्स। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, मूड के ऊपर। वो कोर्ट कहती है कि भाई द होल एक्सरसाइज विल बिकम फर्टाइल फॉर ए टेक्निकल ब्रीच, व्हाई शुड हैपन दैट। सो जैन साहब जो स्टीजी कह रहे हैं दैट पॉइंट्स बिकम वैलिड फॉर दैट मैटर, कि इफ द डिपार्टमेंट इज टेकिंग ए प्ली कि भाई पुराने केस तो हम चलो वो 1 लाख केस जो नोटिस खत्म हो जाएंगे, वो तो फेयर एनफ, बट समवेयर दे हैव टू पुट ए स्टार, दे हैव टू पुट ए लाइन आउट देयर, लाइक it depend upon the court, the judges on that point। वही जज बेल देता है, वही जज रिजेक्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में है ना कितनी बेंची जो जाती बेल मिल जाती है, कुछ ऐसी बेल है बेंची जाती रिजेक्ट हो जाती है बेल। नहीं वो दैट्स नो, मतलब वो मेरा मतलब आई मीन इफ दे आर नॉट ड्राइंग लाइन फॉर दैट मैटर, तो उसके केस में agreed at the end of the day law is always evolution। हाँ वो ठीक है, वो
That's the issue, but that's why I say there is an apprehension. Now High Court आपको सब फेवर कर रही है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके जब खड़ा होगा तो शायद हो सकता है बदल जाए। उनकी ये एसएलपी एडमिट हो गई है इसके ऊपर, नोटिस इश्यू हो गया, नोटिस इशू हो गया। अच्छा ठीक। एक्सावेयर पे नोटिस इश्यू हो गया। तो आप मेजर- लग रहा है सर आपकी एक मिनट मेज जी, हाँ सुभाष जी बोलिए। आपकी एप्रीहेंशन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चांसेस है कि वो डिपार्टमेंट के क्राई करने से इतने ज्यादा केसेस हैं, ऐसी प्रॉब्लम है जहां आई बिलीव देयर कैन बी अ चैलेंज ऑन दिस इशू, देयर कैन बी अ चैलेंज। तो 3-4 इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन वाला जो इशू है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का, वो जो ऑर्डर स्टे किया हुआ है, एक वो कहते हैं, एक वो रोका बाथरूम वाला जजमेंट है जो इंटरनेशनल वाली टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर तंग कर रहा है डिपार्टमेंट को, कि उसमें जो टीपी के अंदर वो एक्सटेंडेड पीरियड नहीं मिलेगा, 153 की जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल, उस चक्कर में भी बहुत सारे केसेस इकट्ठे हो गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। अब ये 151A वाला मैटर भी जो ये था, जजमेंट आई थी हेक्सावेयर की, ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, ये तंग कर रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ व्हाट द स्टैंड इज टेकन, बिकॉज इनके रेमिफिकेशन इम्प्लीकेशन बहुत हाई, बहुत लार्ज स्केल पर है ऑल इंडिया के बेसिस। तो डिपेंड करता है किस बेंच में लगे, उस जज का मूड क्या बनेगा और क्या होगा। सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत सारे इशू चल रहे हैं 153D के ऊपर ऑल इंडिया। सुभाष जी, इसमें तो क्या ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े से पैसे खर्च करके टेम्परेरी रिलीफ ले लो, बाद में अगर आए तो लड़ना तो है ही। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ सर महेश जी, अभी बहुत सस्ता भी हो रहा है। नहीं सस्ते महंगे की बात नहीं है, प्रश्न ये है कि इमीडिएट रिलीफ अगर मिल रहा है, यू नेवर नो कि व्हाट देयर इन द ट्रेजर टुमारो, you can look into that. I mean that's the individual call. एक और जो मुझे थोड़ा सा महेश जी एक और मैं ब्रीफ कर दूं बिफोर क्वेश्चन आंसर लेते रहें। ठीक है सर। बाद से विश्वास स्कीम नोटिफाई हो जाएगी, कोई एक्ट तो बन गया है। तो मेरा कहना है कि वी मस्ट गो थ्रू द ऑल केसेस वेयर अपील इज पेंडिंग, और जहां लगता है कि पुरानी अपीलें हैं और रिस्क है और चांसेस जीतने हारने के बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लगते हैं, तो उन केसेस में दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल विवाद विश्वास। और इसी तरह से जो दूसरा बोर्ड का सर्कुलर आने वाला है टैक्स इफेक्ट वाला, उसमें भी बहुत सारी अपीलें रुक सकती हैं, रुक जाएंगे, क्योंकि उसमें सेलेक्ट इफेक्ट बढ़ रहा है। तो वन शुड ट्राई टू अवेलुएट कि भाई ये विवाद से विश्वास में, क्योंकि सतीश जी ने एक जिक्र किया बॉम्बे ट्रिब्यूनल का पेनी स्टॉक की जजमेंट का फेवरेबल का। मेरा इतना ही कहना है कि पेनी स्टॉक इज द मोस्ट रिस्की प्रपोजिशन, और इसकी जजमेंट में ना टैक्स इफेक्ट है, ये कोर्ट का मामला हाई कोर्ट को रह जाएगा। अब कोई जजमेंट आज की डेट में इधर उधर फेवर में आ गई तो दैट डजंट मीन कि पेनी स्टॉक की जजमेंट फेवर में हो जाएंगी। आज की डेट में हम कोर्ट में इसको पेनी स्टॉक को केस को बाय एंड लार्ज अनटचेबल केस कहते हैं, क्योंकि जैसे ये केस के मैटर आता है, जो वकील खड़ा होता है, जो जज करता है और जो पार्टी होती है, ऐसा लगता है ये सारे बेईमानी हो गई इसमें। ये बड़ा भारी रिस्क है इसके अंदर। तो जो रिस्की वाले केसेस हैं, मेरा कहना है कि उसको, क्योंकि पेनी स्टॉक में 90% केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट क्लाइंट के उसके अगेंस्ट, एक दिन पहले तो उसके डीमेट अकाउंट में आते हैं, अगले दिन बिक जाते हैं, कैश की परचेज है सबकी, पीरियड ऑफ होल्डिंग सस्टेन नहीं हो रहा। कुछ केसेस ऐसे आए हैं किसने लिखा कि इंडस बैंक के शेयर के, बैंक में शेयर ही नहीं थे। अब क्या होता है, क्लाइंट को चाहिए रात को एंट्री, उन्होंने कहा अच्छा मैं वर्किंग हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक एग्जामिन करने वाली बात है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी डन। सतीश जी ने 263 का मैटर, सॉरी टीडीएस क्रेडिट के बारे में इशू डिस्कस किया। इवन इफ यू हैव नॉट, हेलो टैक्स कर दिया, हेलो असेसिंग ऑफिसर ने एक पर्टिकुलर इनकम को टैक्स कर दिया और टीडीएस का क्रेडिट नहीं दिया। असेसी गया अपील में और असेसी ने ये कहा कि भाई मेरे को ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। एक मिनट भाई, मेरे को आवाज नहीं आ रही, स्टिल हो गया क्या ये? एक मिनट।
ये आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं हाँ है। नहीं एक अभी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जैन साहब आपका स्टिल हो गया है और आवाज भी नहीं आ रही है। एक मिनट। कनेक्शन हट गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं कोई बात। फोन कर दो। कर रहा हूँ सर। मीना जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। आगे हाँ जी। सर आगे 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 बीच में वो। हाँ नहीं, मेरे यहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो उससे डाटा शिफ्टेड गया। हाँ हाँ सर प्लीज। तो मेरा कहना ये है कि उसमें जो शशि ने ये क्लेम किया कि भाई मेरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है और इसके ऊपर मुझे टीडीएस का क्रेडिट मिलना चाहिए। हम देखिए आए और उसके अगेंस्ट का जब नाम आता है, बिहार का नाम आपके जिंदल साहब आपका एक मिनट मैं कर रहा हूँ सर। हाँ सर हो गया आपके चलिए। यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ी सी ध्यान रखना। हो गया सिंगला साहब। ठीक सर। तो जिसके और उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल ने 2 डायरेक्शन दी, ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है और एसएससी को टीडीएस का क्रेडिट दिया जाए। उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में आया कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं है, और डिपार्टमेंट इस पे हाई कोर्ट में इस इश्यू पे आया ही नहीं कि टीडीएस का क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और वो अपील डिपार्टमेंट की डिसमिस हो गई कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। इस बात पे देन द मैटर केम अप, जब एसएससी ने रिट फाइल की कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा, तो डिपार्टमेंट का कहना था कि इन्होंने रिटर्न में क्लेम ही नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को वायलेट कैसे कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने जब उस ऑर्डर में क्लियर डायरेक्शन दिया है कि दैट यू नीड टू गिव ए क्रेडिट ऑफ टीडीएस, यू कैन नॉट नाउ सिट ओवर द जजमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, यू आर असेसिंग ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो उस बेसिस पे वो टीडीएस क्रेडिट अलाउड हो गया, इवन दो इट इज नॉट क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। ये बहुत डिबेट हुआ था, 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा कोर्ट में डिबेट चली थी, एंड दैट वाज द इशू व्हिच हैज कम अप। एक सतीश जी ने इशू छेड़ा था टीडीएस प्रोसिक्यूशन का। मैंने शायद इस प्रोग्राम में टाइम एंड अगेन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है, टीडीएस के बारे में वी नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल सो एज टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी एंड प्रोसिक्यूशन। देखो टीडीएस में 2 प्रोविजन है, टीडीएस काट के जमा नहीं कराना या लेट जमा कराना, या लेट काट के लेट जमा कराना। जो पहली सिचुएशन है जिसमें टीडीएस काट लिया जाता है और लेट जमा होता है, उसमें प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और जिस दूसरी सिचुएशन जिसमें काटा नहीं लेकिन लेट काटा और लेट काटने के बाद विद इन टाइम जमा करा दिया, अपना प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, 31 मार्च को देखते हैं, इंटरेस्ट था इसका रह गया गलती से, तो 31 मार्च को दिखा देते हैं कि कट गया, अब जमा कराया जुलाई में, 194C का करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा मत करिए। अगर 31 मार्च को 31 को कोई पेमेंट आपकी टीडीएस के लायबल थी, उस डेट को उसकी पूरी पेमेंट क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दो और टीडीएस मत काटो। और जब आप रिटर्न भरें तो रिटर्न में ये दिखाएं कि हमने काटा ही जुलाई में था। अगर आपने कोई पेमेंट सपोज करो 7 सितंबर को करते हैं, तो आप ये कहो कि 31 अगस्त को टीडीएस डेबिट किया उसके अकाउंट में। अगर ऐसा होता है तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है और पेनल्टी रीजनेबल काज में छूट जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि कंपाउंडिंग करानी पड़ती है। तो जब आप रिटर्न भरने लगते हैं उस समय ये ध्यान करें कि टीडीएस डेट ऑफ डिडक्शन एंड डेट ऑफ डिपॉजिट में 7 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इसके अंदर जस्ट टू ऐड ऑन, आई मीन जस्ट स्मॉल क्वेश्चन आउट देयर, अभी एक केस भी तो है ना जिसमें कहा है कि अगर सपोज करो टैक्स पहले पे कर दिया था, सो प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी डन इन दैट केसेस। प्रोसिक्यूशन टैक्स पहले जमा कर दिया था क्या मतलब? कर सकते अगर नहीं अभी नहीं ऐसी कोई जजमेंट नहीं है। जो भी जजमेंट है दे आर ऑन पर्टिकुलर फैक्ट्स। देयर इज नो जजमेंट ऑन द कॉन्ट्रेरी। टीडीएस के बारे में कोर्ट बहुत अगेंस्ट है और डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट कोर्ट में बहुत सख्त आता है। उनका कहना है देखो हमें प्रोसिक्यूशन इसलिए नहीं करना पड़ता कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें गालियां मिलती हैं डिडक्टी से, तो इसको क्रेडिट नहीं जाता।
और हमें ये लेसन सिखाने के लिए डिडक्टर की प्रोसिक्यूशन करनी जरूरी है, अदरवाइज ये मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में 99% सक्सेस टीडीएस के ऊपर डिपार्टमेंट को मिल गई है। मेल आ गया बाय एंड लार्ज मिल गई 99% सक्सेस इस पर। मेरा ये मेरा एक मिनट सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंड्स से, जो टीडीएस में ध्यान रखने की बात है। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स से, सभी से, कि जो भी जिनके भी ऑडियो ऑन है वो ऑडियो ऑन तभी करें जबकि उनको क्वेरी करनी हो या अपनी बात कुछ रखनी हो, क्योंकि मेरे को भी वरना बार बार कंट्रोल करने में डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, उसको प्लीज ध्यान रखें। प्लीज ओवर टू सर। बाकी सतीश जी ने कुछ जजमेंट वो जो 153 के बारे में कही थी कि जो एक बार असेसमेंट सेटिसाइड हो गई यार मैं रिफंड मिल जाएगा, वो तो एक सेटल्ड है। 153(3) में 9 महीने का टाइम मिलता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 153(6) में 1 साल का मिलता है। तो जो भी प्रोविजन है, द लॉ इज वेरी क्लियर। अगर आपने असेसमेंट नहीं करी तो आपके रिटर्न इनकम इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, और आपको जो भी क्रेडिट रिफंड बनता था वो आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। इसके बारे में आपके अभी नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस, अगर आप विनय जी दो हैंड्स अप है सर इमीडिएटली, महेश बंसल और सीएम जैन साहब का। महेश बंसल का पहले था तो महेश बंसल का पहले ले लेते हैं, फिर बाद में सीएम जैन साहब का लेंगे, और बाद में प्रहलाद जी भी हैंड्स अप किए हुए हैं, वो बाद में देख लेंगे। महेश बंसल। जैन साहब, मेरा क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट के ऊपर में। जो एमएसएमई पे जो डिसअलाउंसेस आ रहे हैं उसमें माइक्रो और स्मॉल लिखा हुआ है, और उसमें भी काफी लोगों ने माइक्रो और स्मॉल में ट्रेडिंग के भी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर में, उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स को अलग से दिखाना पड़ता है। तो उसमें क्या ट्रेडिंग वाले भी ऐड करेंगे या खाली वो गैर ट्रेडिंग वाले करेंगे? नहीं, जगह जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो एलिजिबल है। मतलब क्रेडिटर का क्लासिफिकेशन तो चाहे ट्रेडर हो कोई भी हो। नहीं, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज आर कवर्ड। डिसअलाउंसेस में तो ट्रेडिंग कवर नहीं है ना। वो क्यों? वो तो काफी पीछे नोटिफिकेशन आ गया, बहुत बात हुई थी। नोटिफिकेशन तो नहीं है, काफी लेक्चर वगैरह हुए थे। लेक्चर से क्या उन्होंने ये बोला था सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, लेक्चर से क्या उठता है, ये क्या होता है? जैन साहब, इंस्टीट्यूट ने जो 3CD पे लेटेस्ट गाइडेंस नोट निकाला है इसमें, उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि ट्रेडिंग को जो नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। देखो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। अगर इंस्टीट्यूट का कोई गाइडेंस नोट आया तो देन इट्स ऑल राइट दैट वे, देन यू मस्ट पुट अ डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर टू दैट इफेक्ट दैट यू आर गोइंग एक्सक्लूडेड ट्रेडिंग। उसमें काफी जितने भी लेक्चर हमने सुने थे पीछे भी 2-4-5 महीने में, उसमें ट्रेडर वर्क तो नहीं था। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो बैलेंस शीट जो बनती है क्रेडिटर शो करने हैं, उसमें वो अगर ये ट्रेडर्स वाला डिसअलाउंसेस नहीं होता है तो उसमें दिखाना है क्या ट्रेडर वाला ही, या वो टोटल जाएगा? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। देखो, मुझे बहुत सारा टैक्स ऑडिट का इस सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है कि क्या डिस्क्लोजर आता है क्या नहीं आता है। तो मैंने टैक्स ऑडिट को देखा नहीं है कभी इसके बारे में क्या। लेकिन मेरा कहना है कि 43BH की जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर है कि क्या डिसअलाउंस होगा। इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, इट सिंपली सेज पेमेंट आउटस्टैंडिंग इन द नेम ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और बोर्ड ने, सीबीडीटी ने कोई क्लैरिफिकेशन इशू नहीं किया इसके बारे में, कोई फर्दर डाइल्यूशन नहीं किया किसी भी तरह से। उन्होंने कहीं नहीं कहा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अलग है, सर्विसेज अलग है, कुछ है। अब जो भी एमएसएमई एक्ट में कवर होते हैं और जिनकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है बियॉन्ड दैट पीरियड, 45 डेज जो भी पीरियड है, मेरे हिसाब से दे आर ऑल लायबल फॉर दैट, अनलेस कि इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में आ गया तो अलग बात, उस पे ऑडिटर के अंदर लायबल। अब मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा गाइडेंस नोट, दे कैन क्लियरली से कि यहाँ पे गाइडेंस नोट में लिखा है ट्रेडिंग इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड। नहीं लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट ऐसे लिख पाएगा अनलेस कि नहीं लिखा हुआ है सर, मेरे बुक्स ओपन है। इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स जो इशू हुई है उसमें मेंशन नहीं है। अगर किसी के सामने अभी है और स्क्रीन पे शेयर कर सकते तो कर दे। सर, इशू किया हुआ है, मैंने पढ़ा है 4480 का जो गाइडेंस नोट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंसर्न्स आर नॉट कवर्ड, क्लियरली लिखा हुआ है। उन्होंने वो बैंक लोन वाला सर्कुलर भी रखा है सर उसमें। विनय जी, सर किसी के पास तो अभी आज की डेट में ऑनलाइन, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट की जरूरत नहीं
एक मिनट, मैं उसी को सर्च कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू शेयर विथ। मीनवाइल में दूसरे को और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एक मिनट, सीएम जैन साहब का है, विनय प्रहलाद जी का है। सर, विनय सर, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं उसी में सर्च कर रहा था एक्चुअली, मैं उसको देख रहा था कहाँ वो उसका, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप अपना सीएम जैन साहब, आप अपना क्वेरी रखिए, फिर प्रहलाद जी अपनी क्वेरी ले लेंगे। ठीक है सर। सर, एक पेनी स्टॉक का केस है, असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, और वो हम रिट में गए थे, फाइनली हमारे फेवर में हुआ, फिर आशीष अग्रवाल वाला केस लगा, फिर से ऑर्डर हमारे नेगेटिव में आ गया। अभी हम अपील में हैं, और इस केस को BSBS में ले जाना चाहिए या फिर 13, 14 और 14, 15 के लिए चैलेंज करना चाहिए। देखो, आपको दो सलाह है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक में वो जजमेंट आ जाएगी। अगर वो 13, 14, 14, 15 जिसके चांसेस कम है बचने के, अगर वो अगर क्वेश हो जाता है, बचने के नहीं है, बचने के तो चांसेस नहीं है सर। नहीं, हमने आर्गू किया है, ऐसा है कि हमें उम्मीद कम है जिस ढंग से हियरिंग कंक्लूड हुई है, बट लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश कर डिक्लेयर एक्सेप्ट कर लेती है। आपका दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, कहाँ का है? आपने ही किया है, दिल्ली हाईकोर्ट का है। नहीं तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं है, वो तो दिल्ली हाईकोर्ट में अभी दिल्ली में पेंडिंग होगा। हाईकोर्ट में आधार का बैच चल रहा है। नहीं सर, वो हमारे फेवर आशीष अग्रवाल से पहले ही हो चुका था सर। नहीं, उसके बाद डिपार्टमेंट ने दोबारा नहीं खोला, दोबारा खोल दिया और ऑर्डर कर दिया, हम अपील में चले गए, CIT अपील में सर। उसके केस आप उसमें नहीं है, रिट में नहीं है, रिट में नहीं गए थे। हाँ। तो उस केस में तुम देखो, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वेट कर लो। अगर ये अगेंस्ट आती है तो अपने भलाई है कि चुपके से विवाद से विश्वास में पैसे जमा कराकर निकल जाए। ठीक सर, थैंक यू। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। आपके बिना तो मीटिंग पूरी नहीं हो सकती। क्या करें, आपकी गाइडेंस चाहिए ना। बताइए। कैन ए मेंबर ऑफ द HUF गिव लोन टू HUF इंटरेस्ट फ्री लोन? क्यों नहीं दे सकते, कौन मना है? उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं, क्या मनाई है? अच्छा, कि नहीं, अब आप आगे का पर्पस बता दूं मैं आपको। HUF में दे वांट टू डू सम बिजनेस। नहीं, हाँ, बिजनेस करे, काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करके ब्याज गेन का मैचअप कर ले तो फिर तकलीफ हो जाए। नहीं, बिजनेस करना है तो वो दे वांट लोन। हाँ, मिल जाएगा, दे दो। एक और स्मॉल इशू है, वो सोशल है बेसिकली, कि एक पर्सन वांट टू गिव अ फ्लैट टू हर मेड। हैं? एक फ्लैट अपने मेड को देना चाहता है आदमी। मेड के क्या फ्लैट किसको? उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, अपनी जो मेड है उसको एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता है। अब अगर गिफ्ट करता है तो गिफ्ट टैक्स लग जाएगा उसकी मेड के ऊपर, बिकॉज इट इज कॉस्टिंग 80 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली। सो कैन ही मेक ए फैमिली ट्रस्ट, और फैमिली ट्रस्ट बना के उसमें कंडीशन डाल दे कि दिस फ्लैट विल गो टू एक्स। नहीं, मैं नहीं समझा, मैं आई कुड नॉट मेक इट आउट। फैक्ट्स आपने बदल गए। आप पहले HUF की बात कर रहे थे, कुछ और वो तो हो गया ना। नहीं, मैं बोला वो तो खत्म हो गया, जिससे एक आदमी है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास he has money and everything, उसकी मेड उसका काम, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसने उसकी मेड उसने काम करती है 20 साल से, तो he want to give a flat to her maid। विल कर दे, वो कह रहा मरने के बाद नहीं करना चाहता, मरने से पहले मैं देना चाहता हूँ उसको। 56-10 लगेगा? नहीं, अगर वो फैमिली ट्रस्ट बना ले और उसमें कुछ भी बना ले, नहीं, फैमिली ट्रस्ट से जाएगा फिर तो गिफ्ट नहीं होगी ना, क्योंकि तो फैमिली ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी को। अरे भैया, आप पढ़ो तो 56(2) कहता है वेयर ऑल बेनिफिशियरी आर द रिलेटिव कवर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन। नहीं, लेकिन रिलेटिव नहीं है ना, उसको रिलेटिव है नहीं। दैट्स व्हाई ऐसे कि नहीं आएगा कवर्ड। भाई, अगर उसको बेनिफिशियरी बनाता है तो ट्रस्ट को देने में, जो ट्रस्ट को देगा इमीडिएटली वो टैक्स हो जाएगा ट्रस्ट के हाथ में। स्टैम्प ड्यूटी पे करके ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी को। आप कहाँ बैठे हैं इस समय? कहाँ बैठे हैं आप? मैं घर पे हूँ। आप खोलो किताब 56(2)(10). नहीं, इनको ना मेड को अडॉप्ट कर लें। क्या वो ट्रस्ट में नहीं होगा? अरे पढ़ो तो यार, एनी पर्सन बाय एनी पर्सन एग्जम्पशन क्या है? जैन साहब, मेड को अडॉप्ट कर लेना है, क्या हो गया उसको? अडॉप्ट करके दे दो। नहीं, वो नहीं हो सकता यार, वो समझ गया। इनके बातों का सेंस ठीक है, वो समझ में जाने की जरूरत नहीं है।
सर मैरिड फीमेल अडॉप्ट नहीं हो सकती। अरे भैया एक बात सुनो राम रखियानी साहब, 56(2)(10) की पहली वर्डिंग है, वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एनी मनी और एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। खत्म हो गया। ठीक है ना। उसके बाद एक नीचे आती है, प्रोवाइडेड दैट इन दीज केसेस इट विल नॉट बी। उसमें आप ढूंढ लो कहां पा रहे हैं, वो खत्म हो गया, सब टैक्सेबल है। कोई तरीका है? लिखा है टू ए ट्रस्ट in which all beneficiaries are the member are those who are covered within the। तो कोई तरीका नहीं है मतलब उसको देने का, मतलब अगर तरीका हो तो 56(2)(10) का क्या होगा ये बता दो। मेड तो बहुत है बाजार में भाई, लोग तो गिफ्ट दे भाई, दोनों ये सारा आज के डेट में एंट्री करने का तरीका तो बहुत आसान है। I believe she is working good there, maybe taking care of the family. तो ultimately service is being rendered, salary एक तरह की तो बस। नहीं तो अगर विश्वास तो विल करे, नहीं तो वो कह रहा मैं जितने ही दे जाऊं कम से कम भाई, मरने के बाद तो माय डॉटर इज देयर, तो डिस्प्यूट ना हो जाए, तो पहले मैं आई वांट टू गिव हर भाई दैट टैक्स दे ले, कौन मना करता है। अगर टैक्स पे करेगा तो वही गिफ्ट हो जाएगी, वो तो मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी, आप स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, दोनों लगेंगे। वो देगा तो वो भी ऐड हो जाएगा गिफ्ट के अंदर, बिल्कुल होगा। फिर उस पे दोबारा भाई यार देखो, दिस इज नॉट, कानून को कानून की तरह से समझो ना। कानून तो आपके लिए टेलर मेड थोड़ी है, आपको अपने आप को टेलर मेड बनाना पड़ेगा कानून के हिसाब से। हाँ जी चावला जी, आपके यहाँ लाइट क्यों नहीं है? आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आप हो ना हमारी लाइट। अरे कहाँ आप, मैं रोज जब इतनी देर से देख रहा हूँ, इतनी बढ़िया आपने जैकेट पहनी है, लेकिन आप अंधेरे में बैठे हैं। उजान साहब आप हमारी लाइट हो। हाँ बताओ सर। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैंने तो अपने कैमरे की लाइट बंद की हुई है। मेड्स का रखना बड़ा डेंजरस है, वो मांगती हैं ये मकान दे, नहीं तो तेरे बेटे को बताऊंगी। नहीं मैं आई बिलीव कि शी इज वर्किंग फैमिली सर्वेंट है, अच्छा काम कर रही है, तो कई बार होता है कि भाई शी हैज बीन विद द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो गिफ्ट दे। ऐसा नहीं है, उसको उसके बच्चों को राम रखियानी साहब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बट इट विल बी बिकॉज in case she doesn't come within the definition of relative, then it will be taxable. जन साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। सर एक पैसेज थोड़ा सा नोट है जो हमारे किसी दोस्त से, हमारे मेंबर से लिख के आया है रिगार्डिंग 43BH। पढ़ दूं जरा, 2-3 लाइनें हैं। हाँ पढ़िए। In the course of our audit for the purpose of verifying disallowances under section 43BH of the Income Tax Act 1961 required to be reported under Clause 22 of 3CD form of tax audit, we have relied on the MSME classification provided by the auditee and the representation made by the management. As per auditee's representation, the creditors covered under MSMED Act 2006 have expressed their willingness not to be treated as MSME due to business exigency and accepted payment cycle of the trade. Consequently, the disallowances under Section 43BH are nil. Our verification of the compliance with Section 43BH is based on the information and representation provided by the auditor's management. Our opinion is thus dependent on the correctness of these classifications and representations. ऑडिटर किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? गवर्नमेंट की। अब चुप हो गए, मैंने जवाब पूछा था आपसे। और सर ये सवाल ये किसी का आया था सर, अब आने से उठता है। आप कानून को अपने आप कानून, कैन ऑडिटर राइट ए लॉ, रीराइट ए लॉ? सर वेटिंग के लिए दिया सर आपको। हाँ वो नहीं वेटिंग क्या है, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इफ द लॉ मैंडेट दैट एमएसएमई की पेमेंट आउटस्टैंडिंग आपको रिपोर्ट करनी है, आप करो, मैंने ये ले लिया वो ले लिया, हाउ डज इट रिपोर्ट इट? आपकी ड्यूटी क्या है? आप कानून को, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। What is the auditor role? Government says, I am assigning you this duty, please verify the account of this person and tell me MSME की पेमेंट आउटस्टैंडिंग कितनी है। बट दैट्स ऑल। Otherwise, one can. आप उसके कानून में चले गए भाई, तो लिख ले कानून, ये नया बनाया उसने कहा, तो आपका रोल ही नहीं है। यू आर स्टेपिंग इनटू दैट एरिया वेंचरिंग इनटू दैट व्हिच इज नॉट योर सब्जेक्ट मैटर। सर इनकरेक्ट है टोटल। एब्सोल्युटली है, कमाल। आई उससे ज्यादा क्या कहूंगा मैं आपको।
थैंक यू सर, थैंक यू, राइट सर, राइट। जैन साहब, एक अभी एक सवाल आया था जो रिट में नहीं गए थे और अपील में गए हुए थे, जिसमें आपने एडवाइस किया कि विश्वास से स्कीम में जाएं। एक केस में रिट की हुई है पर अपील नहीं की हुई है, 13-14 का केस है। वो उसकी अभी वो एलिजिबल नहीं होंगे विवाद से विश्वास में, नहीं होगा क्योंकि इसकी डिमांड डिटरमिन नहीं है। वो चले जाएगा। सर इंस्टीट्यूट का जो मैं कह रहा था ट्रेडर वाला, वो पेज मैंने स्क्रीनशॉट उनको भेजा है अभी विनय जी आप को। पढ़ के सुना दो ना सर, जो कंक्लूडिंग पैरा है वो पढ़ रहा हूं मैं आपको। In any case, for the purpose of Section 43BH, the definition of enterprise, micro enterprise and small enterprise under the MSMED Act 2006, read with relevant notifications are relevant. Traders are not included in the definition of enterprise, hence they do not fall within the scope of micro small enterprise. बोल रहे फाइन है, ठीक है, that is fine अगर ऐसा लिखा है। पर आपको फिर ये वेरीफाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट से वो ट्रेडर है। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स उन्होंने, वो इंस्टीट्यूट वालों ने भी वो कहा कि वो सब वेरीफाई करिए सर्टिफिकेट पे क्या है। जैन साहब, जो विवाद, जैन साहब, मेरा जो क्वेश्चन था ना इसमें डिसअलाउंस के अलावा बैलेंस शीट का क्वेश्चन था। वो तो बैलेंस शीट जो बना ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें ट्रेडर को इंक्लूड करें या नहीं करें, क्योंकि वहां कुछ नहीं लिखा हुआ। वो देखो मैंने बताया, देखो ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है कि भाई बैलेंस शीट में क्या है। I have not read that part. सर उसमें दिखा दो, लेकिन ट्रेडिंग अलग लिख दो। दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिंग को और ब्रोकअप बना दो ना, एमएसएमई का ट्रेडिंग का एक और एबीसी करके बना दो। बैलेंस शीट और के बेसिस पे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने पेमेंट टाइम में करी नहीं करी, वो इतना लिंक नहीं बिठा सकता कोई भी। बैलेंस शीट में अगर फिक्स फिगर एक्सेस भी आ रही है। सवाल कुछ और पूछता हूं महेश जी, डिस्क्लोजर करने में रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर को क्यों चिंता होनी चाहिए? नहीं, ऐसा था जैन साहब कि 2023 तक तो कोई भी जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस थे कोई लिस्ट बनाता ही नहीं था। 2024 में उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है साहब, ट्रेडर को कर देख नहीं करें बस। भाई कंपनीज एक्ट में शुरू से प्रोविजन है। हाँ है, लेकिन एक जनरल पॉइंट दे देते थे पहले हम लोग। जनरल पॉइंट देने से बात बनती नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है ना भाई। अपनी स्किन बचाने के लिए आपने एक जनरल नोट लिख दिया, नहीं वो लिस्ट भी बनाते थे, नहीं करी। दैट इज द प्रॉब्लम कम्स अप। भाई मैंने सवाल क्या पूछा, आप ऑडिटर किसके हैं? ड्यूटी आपको किसने दी? सरकार ने दिया या एसएससी ने दिया आपको? अब ये हो गया है तो हटा लो। ये तो मेरे ख्याल ये पॉइंट तो क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने, अपने ललित जी ने कर दिया ना क्लैरिफाई। विनय जी, जैन साहब, एक इशू था विवाद से विश्वास स्कीम में। हाँ जी सर, उसमें ये था कि जो केसेस का डिसीजन 23 जुलाई के बाद आया है सीआईटी अपील का, और हमने आईटीएटी अभी फाइल करनी है, क्या उसके ऊपर विवाद से विश्वास स्कीम लागू होगी सर? हाँ बिल्कुल होगी भाई। सीआईटी आईटीएटी में अगर ऐसा वो अनफेवरेबल डिसीजन आ गया नहीं, एक सुन तो लीजिए यार। देखो, विवाद से विश्वास एक्ट क्लियरली ये कहता है, जो फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनाया है, इफ द अपील वाज पेंडिंग ऑन 22 जुलाई 2024, तो उसके बाद क्या हुआ उनको कोई मतलब नहीं है। अगर 22 जुलाई को अपील पेंडिंग थी तो आप कर सकते, दैट्स ऑल। ठीक है। इसीलिए तो मैंने उनको सलाह दी थी ना कि भाई आप उसका वेट कर लो, सुप्रीम कोर्ट का नहीं आए तो चले जाना विवाद से विश्वास में। कई केस बाद में एडजुडिकेट होके आ गए हैं, कई केसों के डिसीजन आ गए हैं। कोई बात नहीं, अगर अगेंस्ट आ गए हैं तो चले जाओ वहां पे। सर, अब इस साल पिछली बार ये हुआ था ना कि जब विवाद से विश्वास स्कीम आई थी तो उन्होंने सारे ऑर्डर करने अभ्यास में डाल दिए थे। अब इस बार ये नोटिस निकाल रहे हैं, रिप्लाई ले रहे हैं। क्या कर रहे हो? लेफ्ट से निकलो, सारा बेड, उसका बेड खराब हो जाएगा। Can we take the next question? 80 किलो सोने और 4। हेलो, हाँ जी प्लीज। जैन सर, दिस इज सतीश। हाँ जी बताइए सतीश जी, बताइए। सर, दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 148। 148 में असेसमेंट ईयर 17-18 का क्वेश्चन है।
17 और 18 असेसमेंट ईयर में स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुकी थी 17-18 की। इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्शन जो है, रेवेन्यू के इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्शन जो है वो फरवरी 2021 की डेट का है कि ये असेसमेंट ठीक से नहीं हुई। सर, इंटरनल ऑडिटर के इंफॉर्मेशन माना गया है 1 अप्रैल 2022 से। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि 24 फरवरी 2021 की जो इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिटर की एओ को गई, एओ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बात और है। उसने बोला नहीं मैंने असेसमेंट ठीक किया है, उसकी भी कॉपी है मेरे पास। बट अभी मैं इसी टेक्निकल पॉइंट पे हूँ कि फरवरी 21 दैट internal auditor memo was nothing but just a piece of paper. So can reopening be done on the basis of internal auditor memo? Answer is no, you cannot do it. But आज की डेट में लिटिगेशन तो चल ही रही है इसके ऊपर। सर, लिटिगेशन में आप तो एक्सपर्ट हैं लिटिगेशन के, इस मुद्दे पे अगर हम जाएं डेट में तो जाओ पाओ लेकर यहाँ पे बात कर देंगे। आज की डेट में आपका केस 2022 का खुला हुआ है। ये असेसमेंट ईयर 17-18 है। केस आया था का मार्च 24 वाला रेट में जा सकता है आज की डेट नहीं, मार्च 4 में 17 के असेसमेंट ईयर का नोटिस आया था। नहीं, वो क्या होता है रिट के लिए भी हालांकि टाइम नहीं होता, एक रीजनेबल पीरियड होता है। अगर आपका 148 का ऑर्डर और नोटिस मार्च 24 का है तो देन यू कैन फाइल ए रिट। यस सर, ये टेक्निकल इंटरनल ऑडिटर का जो मेमो था फरवरी 20 का कि दिस उससे नहीं, दैट फरवरी 21 इज नॉट इम्पोर्टेंट। इशू इज दैट इट इज बेस्ड ऑन इंटरनल ऑडिटर ऑब्जर्वेशन वेयर असेसिंग ऑफिसर हिमसेल्फ इज नॉट एग्रीइंग विद इट। दैट विल बी द मेजर पॉइंट। सर, ये जो असेसिंग ऑफिसर इंटरनल डॉक्यूमेंट जाता है ऑडिट विंग को, हमने कॉपी मांगी है तो एओ कह रहे हैं दिस इज इंटरनल। प्रेडेसेसर इंटरनल ऑडिट टीम को लेटर लिखा था कि असेसमेंट हैज बीन डन इन अ प्रॉपर मैनर। इनफैक्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द सुपरविजन इनकम अर्न्ड इज आइदर रॉयल्टी ओब्लिक permanent. But internal auditor cannot sit on the judgment of the assessing officer and assessing officer cannot review its judgment. जी, so all this which has been concluded in 143(3) can be challenged in writ petition. Yeah, it can be challenged. सर, एक और क्वेश्चन है सर, ये जो 6 साल और ये जो 4 साल 6 साल 10 साल टाइम पीरियड की बात हम करते हैं, अगर 143(3) पहले से ही हो रखा है तो इसमें आपका क्या विचार है सर? 143(3) हो चुका है तो क्या 149(1) की प्रोविजो में कुछ टाइम उसका कर्टेल होता है पहले से अगर स्क्रूटनी हो रखी हो? नहीं, अभी 1/4/21 के बाद कर्टेल नहीं होता है। 1/4/21 के बाद कर्टेल नहीं होगा, वो प्रोविजो खत्म हो गया 147। ओके सर, थैंक यू। लेकिन उसकी लड़ाई लड़ी असेसमेंट ईयर कौन सा है? 17-18 सर। हाँ, तो 17-18 आपकी रीओपनिंग कब की है? हम कह रहे हैं सर 17-18 जो है की रीओपनिंग मार्च 24 में की गई है। एओ कहता है कि 6 साल का टाइम लिमिट था उसके पास। हम कहते हैं कि तो ऑडिट इज नॉट इंफॉर्मेशन। दूसरा हमारे पास 6 साल थे क्योंकि ओरिजिनल असेसमेंट वाज डन इन 143(3). तीसरा मुद्दा है बोरोड सैटिस्फैक्शन का। हो सकता है ये सारे क्यूमुलेटिव पॉइंट बनाए जा सकते हैं। कोर्ट विल एग्री विद इट, फ्रैंकली। कोर्ट विल एग्री। ठीक है सर, थैंक यू। Friends, any other query or shall we? जैन सर, एक मेरी क्वेरी है, सुनील अग्रवाल। हेलो हाँ सर, जैसे जो नया लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आया है प्रॉपर्टीज पे, अगर 23 जुलाई के बाद कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है जो डोनी उसको अगर अब बेचता है तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर वो बेनिफिट और कॉरस्पॉन्डिंगली इंडेक्सेशन मिलेगा उसको? नहीं, आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अगर कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद गिफ्ट हुई है डोनी को और डोनी उस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली सेल करता है
तो उसको जो बेनिफिट होता था पहले कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मानी जाती थी gifted property में। लॉजिकली आई एग्री विद यू कि मिलना चाहिए, लेकिन एक्ट में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लिखा है वेयर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई। ओके, तो थोड़ा सा लिटिगेशन हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे, बेनिफिट देना पड़ेगा पास वो। तो फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा बाय दैट लॉजिक? मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक। और एक और चीज है, जैसे 23 जुलाई और 12 अगस्त के बीच जब एक्ट बना, तो उस बीच अगर किसी नॉन रेजिडेंट का प्रॉपर्टी पे हमें टीडीएस काटना है तो वो 12.5 से कटना चाहिए था या 20% से? जैसे 12.5% टैक्स हो गया तो टीडीएस रेट भी नॉन रेजिडेंट्स को 12.5 हो गया, लेकिन पहले 20%। भाई जब सरकार ने कानूनी 12.5 का कर दिया तो 12.5 ही बनेगा ना। लेकिन उस समय तक फाइनेंस एक्ट पास नहीं हुआ था ना, वो बिल था सिर्फ। तो फिर आपका क्या कहना मतलब? मेरा मतलब है सपोज 5 अगस्त को हमें कोई टीडीएस काटना था तो 20% से आपने अगर 20 काट लिया तो वेल एंड गुड, नहीं 12.5 काटा तो कानून तो बैकडेट से आ ही गया। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था, हमने 12.5 डिडक्ट किया है तो वो प्ली हमारी चलेगी ना, कल को ऑफिसर ये तो कानून यही कह रहा है 12.5% बनता है, तो कैसे बनेगा? तो टीडीएस के रेट वो कहते हैं ना, जिस दिन से इफेक्टिव है उस दिन से चलेंगे। नहीं, ऐसा कहाँ है, ये क्या से लिखा है? अच्छा, नॉन रेजिडेंट्स में तो 1 अप्रैल से ही है। ठीक है, थैंक यू। जैन साहब, ये एनआरआई तो बाहर हो गए ना इंडेक्सिंग से? जी, एनआरआई को इंडेक्सिंग का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, कंपनी के पास 4 प्रॉपर्टियां रेजिडेंशियल, तो डीम्ड रेंटल लगेगा ना सर? हाँ, कंपनी में क्या फर्क है? इंडिविजुअल कंपनी में सभी के ऊपर लगेगा, सेक्शन 22 तो सभी के ऊपर लगता है। हाँ, तो डीम्ड रेंटल देना पड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक सर, थैंक यू। हो गए भैया सबके प्रश्न समाप्त? आज अटेंडेंस पूरी है आपकी जम के। अभी मैं धन्यवाद करते हैं सबका, क्योंकि मेरे पास नाम कम नजर आ रहे हैं। सार्थक गर्ग जी, आई कैन सी आउट। मैंने पहली बार नोटिस किया उनको। कमल मल्होत्रा जी ने तो अपना कैमरा लगा के छोड़ के चले गए हैं। और सतीश कुमार जी से तो बात हुई थी अभी। सुनील जी भी हैं, आई कैन मेक इट आउट। और कृष्ण कुमार जी, आई कैन मेक इट आउट। कृष्ण अवतार जी, आई कैन सी, उन्होंने कैमरा बंद करके रखा है। और अपने अजीत शर्मा जी ने सवाल ही नहीं पूछा, अपना टाई बार आराम से बढ़िया लगाया। लेकिन टाई तो आज किसने लगाई नहीं रखी थी, टाई नहीं लगाई सर। रतन बंसल जी, आई कैन सी। अपने कहते थे हेमंत नारायण जी तो थे ही अपने वहां पर। इसमें आज अपने जम्मू से नजर नहीं आए वो। कोई छोटी सी क्वेरी है। विपुल जी आए हैं अमृतसर, वहां से अमृतसर से अपने ना। और ये सब कैमरे नीचे वाले बंद क्यों है भाई? संतोष कुमार, ये क्या कारण होगा? ये अशोक कुमार मित्तल और ब्रजेश अग्रवाल जी, आई कैन नॉट सी इट आउट। क्या मतलब है? ये तो यार लगता है कि या तो विनोद जैन जी भी हैं, आई कैन मेक इट आउट। राजेश जैन है, प्रदीप बर्नवाल जी साहब हैं, अजय कुमार भाटिया हैं, मिस्टर अजय कुमार भाटिया। संजय सिंगला जी इज देयर, आर सिंगला जी इज देयर। रितु जी तो आती हैं रेगुलरली हमारे यहाँ प्रोग्राम में। मोहित है, लोकेश है। आज मोहित ने सवाल नहीं पूछे एक भी। विमल पारेख जी, संजय झा है, विमल पारेख जी हैं, जेके अग्रवाल जी ने तो सवाल पूछा था। संजय जी भी हैं, रविंदर कुमार जी हैं, आरसी कपूर साहब बेचारे आते हैं, हर बार आते हैं, सवाल नहीं पूछते बेचारे। मनप्रीत सिंह कपूर, आई कैन सी। जो पूछते हैं उनसे आज सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जगदीश अजमानी जी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। जैन साहब, हेलो जैन साहब, हेलो। हाँ जी, जैन साहब। हाँ जी, राकेश चौहान जी भी। हाँ जी सर। हाँ जी, ये जो बाई बैक का 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा और डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा, तो इन सम केसेस डिविडेंड ट्रीटमेंट इज बेटर। एसएससी की और जगह लॉस वॉस होंगे तो नेट इनकम डिपेंड करता है। देखो तो देखो सिचुएशन है। मैंने एक मॉडल बनाया हुआ जिसमें तो ये विन विन सिचुएशन दे रहा है। और आपने अगर ये सवाल पूछा तो मैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बता दूंगा आपको। जी सर। लोगों के कैमरे ऑन हो जाए हैं। 1 सितंबर से जिसकी सर्च होगी तो वो नए प्रोविजन में जाएगा। 1 सितंबर से क्या अक्टूबर से? 1 सितंबर सर्च वाले केस जो हैं 1 सितंबर 2024 के बाद होगी जो सर्च होगी वो नए प्रोसीजर में 60 में जाएगी। जी सर।
और उसकी एक शर्त है कि पेंडिंग असेसमेंट अवेट कर जाएंगी। हाँ अब किसी की पुरानी सर्च हो रही हो, जी सर, चल रही है ना पुरानी, और जी उसमें सर। झमेला उल्टा पुल्टा, कैश की परचेज, कैश की ये, ITO धमका रहा हो, 115 BB लगा दूंगा, 78% लगाऊंगा, पेनल्टी लग जाएगी, 269 SS की पेनल्टी लगाऊंगा, लोन की पेनल्टी लगेगी, ये लगेगी। जी सर। अब वो आदमी क्या करे, चुपके से 10 लाख रुपए पुलिस वाले के यहाँ पकड़ा हुआ थे और आज की डेट में सर्च करा ले। जी इनकम टैक्स की नहीं, पुलिस की। और कल गाड़ी में हरियाणा में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं ना, हाँ हाँ और इनकम टैक्स वाले 132 हाथ में दे देंगे उसको इमीडिएट, और अपनी ब्लॉक पुरानी जितनी असेसमेंट है वो सारी कवर हो जाएंगी, 60% टैक्स जमा करा के अपनी जान छुड़ा के निकल जाए। मुश्किल सवाल है। ये तो सही प्लानिंग है सर, आप पॉलिटिशियन से करते हैं ऐसा? नहीं, पॉलिटिशियन को करते, बिजनेसमैन है बिल्कुल। मुझे तो किसी का क्वेश्चन आया तो मैं, उन्होंने मेरे से पूछा जैन साहब ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कह रहा इतनी सारी मुसीबत पड़ी है, पुराने केसेस खुले पड़े हैं, इतनी टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतनी पेनल्टी, और रोज झगड़े होते हैं, ये जितने खुले केसेस सारे बंद हो जाएंगे, ये सब लोग असेसमेंट में चले जाएंगे। तो ये बाई बैक का सवाल था ना मेरा। हाँ जी, बाई बैक वाला, अगर आदमी में कर लीजिए, उसी के लिए मैंने कहा प्लानिंग में अगर आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी में, अगर वो कंपनी बाई बैक कर ले और जो आपको पैसे मिलेंगे और वो डिविडेंड इनकम आपकी किसी और लॉस से सेटअप हो सकती है, वेल एंड गुड, यू गेट द मनी एंड बेटर है, बिल्कुल बेटर है। बाई बैक में तो कंपनी टैक्स देगी, उसमें वो खुद दे देगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मानी जाएगी, डिविडेंड इनकम, और करंट ईयर का लॉस होना चाहिए, बाकी दूसरा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बिल्कुल ठीक, सही बात है, यू आर राइट। जैन साहब, विद योर परमिशन एक चीज छोटी सी और हाईलाइट करना चाहूंगा इसी तरह की मैं आपके। जैसे न्यू रेजिम में 15 लाख पे अब 1,40,000 रुपए इनकम टैक्स होगा फर्स्ट 15 लाख पे, छोटे सेसेस की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो टैक्स रेट छोटा सा 15 लाख वाला फॉर द फर्स्ट 15 लाख। कैपिटल गेन को ये कहते थे कि हम कि लोअर टैक्स रखेंगे, अब LTCG पे 12.5, STGG पे 20%, छोटे एसएससीज की अदर इनकम पे कम टैक्स है, LTCG और STGG पे उसको कंपल्सरीली ज्यादा देना पड़ेगा। दैट इज द टैक्स स्ट्रक्चर नाउ। रेगुलर इनकम नहीं है ना वो। हाँ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। तो LTCG और STGG का तो मानते ये थे कि रेगुलर इनकम से शायद कम टैक्स रेट लगेगा। यार देखो, ये तो है, देखो पसंद की बात है, किसी को गुलाब जामुन ज्यादा बढ़िया नहीं तो वो मतलब छोटे एसएससीज को लॉस हो गया ना सर। सरकार कहती है भाई हम तो देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को गुलाब जामुन मानते हैं, आप कह रहे हो नहीं यार ये तो बूंदी का लड्डू है, इसको कंसेशन रेट में होना चाहिए, नहीं मानते हो सरकार। आपको अच्छा बोला भाई आप खा लो बूंदी का लड्डू, हम तो ये गुलाब जामुन मानते हैं। ये तो कुछ और बात रही। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर वो 3 लाख से ऊपर 5% 10% का स्लैब भी नहीं लगता, वो 12.5 और 20 का लगेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर, लगता है। अब क्या करेंगे सरकार का, वही तो कह रहा हूँ सर, उनको तो लॉस हो रहा है ना ये बेसिकली छोटे एसएससीज। नहीं ये लॉस तो नहीं, देखो कानून कभी कानून अंधा होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी ऑप्शन होनी चाहिए, अगर स्लैब रेट लेना चाहता है तो ही शुड बी एंटाइटल्ड फॉर स्लैब रेट। देखो ललित जी है ना, ये दिल मांगे मुंह, कुछ भी मिल जाए। वो 20 का 12.5 हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं है, और कहते हैं यार ये 5 का 12.5 लग गया, ये मुश्किल था। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, 20 का 12.5 होने से 37% का रिबेट है, डिस्काउंट है सरकार का टैक्स रेट में। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता पैसा वाइट करने का। ठीक कह रहे सर। 43 को अवॉइड करना हो तो टैक्स अवॉइड नहीं करें हैं, 43BFH को अवॉइड करना हो टैक्स अवॉइड ना करो, अगर 10 करोड़ से कम टर्नओवर है तो। नहीं वो तो है, चॉइस है, आपको 44 ADA में जाना है, कहीं जाना है तो चले जाए, कौन मना करता है, दैट्स द बेस्ट वे। हाँ तो उसके केस के अंदर यू हैव एन ऑप्शन दैट वे, अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं बनता तो यू कैन अवॉइड। जैसे 12-13 का ऑर्डर नहीं बनता तो है, अभी नहीं बनता है तो फिर एसएससी को ऑफिसर कॉल फॉर कर लेगा, रिकॉर्ड उसमें कर देगा आपको काम। हाँ वो तो अगर पकड़ा जाएगा तब ना सर। हाँ वो अलग बात है, दैट्स इट इशू। हाँ जैसे 12-13 का ऑर्डर क्या अभी आ सकता है 24 में? ऊपर डेट लिखी है 14 की, नीचे साइन किए हुए डिजिटली अगस्त 24 में। मैं नहीं समझा कैसे 12-13 का असेसमेंट ऑर्डर 143(1) में अभी मिला है
अपलोड भी अभी किया है और डिजिटल साइन किए हुए हैं अगस्त के अंदर। भाई देखो डेट ऑफ ऑर्डर इज 14। आई कुड नॉट मेक इट आउट कि क्या होगा, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगी, ऐसी सरकार इतना ऐसा काम करती नहीं जैसे आप बता रहे। नहीं, डिजिटल साइन है नीचे अगस्त के, अपलोड किया। भाई आपने कोई रेक्टिफिकेशन अप्लाई की होगी, कोई और किया होगा, कोई 250 का इफेक्ट होगा, कोई 254 का इफेक्ट होगा, कहना मुश्किल है। ITR 1 का है, वो बैंक ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराई, उसका 6,000 रुपए टैक्स बना दिया, लेकिन आफ्टर 13 इयर्स ऑर्डर इशू कर रहे हैं। भाई देखो ये जवाब देना बिना पेपर के मुश्किल काम है, क्योंकि 143(1) में आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई की होगी, जिसको कि सामने TDS कटा होगा, उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा होगा, वो दे दिया। हाँ जी सर अभी जैसे बहुत सारे AY 18-19 के तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा नाम नजर आ रहा था, तुम्हें सवाल नहीं पूछा, मोहित मैंने अभी पूछा था, मोहित सर आपने याद करा सर, मैं इसलिए पूछ रहा था। सर AY 18-19 का सर जैसे भी बहुत सारे 148 आए हैं सर, उनमें सर जैसे 151A का चैलेंज है सर कि वो जाओ ने इशू करे हैं सर, तो इस पर सर अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या पोजीशन है सर? अभी जो बताया मैंने 151A में, बाकी हाई कोर्ट ने फेवर में किया, दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है और 12 सितंबर को केस लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट SLB पर नोटिस इश्यू हो गया। ओके, तो और जो सर पहले 151 पर अप्रूवल पर आए हुए थे सर, जो जजमेंट्स आई हुई थी, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है आज। तो सर अगर ये सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता है तो वो सारे केस खुलेंगे सर दोबारा जिनमें रिलीफ मिला हुआ है? नेचुरली खुल जाएंगे। और उसकी हियरिंग्स कब है सर सुप्रीम कोर्ट में? किसकी? 151 वाली सर। 151A वाले की अभी पीछे लगी थी, स्टे नहीं दिया, नोटिस इशू कर दिया। अच्छा, चलेगा, ड्रैग करेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट सर स्टे दे रहा है अभी। बाकी हाई कोर्ट ने तो फेवर में कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की 12 सितंबर को लगी हुई है, इसके साथ टैग कर देते हैं इमीडिएटली। ओके जैन साहब, इसमें जो TDS वाला मैटर था ना, प्रोसिक्यूशन वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है सर। ये क्या? आई नो भाई, ऐसा है, we must keep 2-3 things in mind when we are applying a judgment in the circumstances. One, the first principle is a judgment of a high court is a good judgment for that high court. It may not be a good judgment for other high court. Secondly, a judgment is delivered on particular set of facts only. I do agree, Jharkhand High Court judgment is on a general principle basis. हम जजमेंट को दो तरह से कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वेदर ए जजमेंट इज इन रैम और जजमेंट इज पर्सोना। रैम इज जनरली एप्लीकेबल, पर्सोना मींस ए पर्सन स्पेसिफिक। तो इट हैज टू बी सीन एंड रेड इट डाउन दैट कॉन्टेक्स्ट। नाउ बेस्ड ऑन झारखंड हाई कोर्ट जजमेंट, one cannot take and frankly speaking, I am of the view that as on date for TDS prosecution penalty is not required, because penalty provision and prosecution provision were segregated into 1987. Correct. Now the law is very clear. In case you deduct and don't deposit, then prosecution will happen, penalty cannot be levied. And then in case you deduct late and deposit late, then 271 capital C penalty is leviable. And you will find the interest rate is also different. In one case it is 12%, in another case it is 18%. Correct. So I always say that it is better looking to the cost of compounding and the pain which one has to go for prosecution. It is advisable to expose oneself for penalty, because then you can fight it out, contest it out, and penalty amount in any case cannot exceed the amount in. So that amount will not be big, and you can be fight it out. But when prosecution happens, then the problem is there. So that's why my simple advice is, in case you don't have the money and your fund flow is problem, please don't deduct TDS. You deduct TDS when you have the capacity to deposit. ठीक है, करें conclude sir? Yes, please. I think thanks a lot, friends. I think we could meet all, and this time I'm very happy that so many people have joined, and I tried to communicate with everyone. And thanks to Vinayji for taking this lead. आज के ये इनके व्रत चल रहे हैं, हमारे वो तो ये समोसे वगैरह की आज मैं बात नहीं कर रहा, मैं चाय की बात कर रहा, और सबको विजिट करके रखा, चाय वाय पिलाई नहीं है।
लेकिन वो सबकी चाय ड्यू है। और मैं सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी एक प्रोग्राम तो रखना ही पड़ेगा जिसमें कि जो लोग फिजिकली आ सके उनको चाय पिलाई जा सके इसके बारे में। So once वर्मा again, जी से भी आज मुलाकात है, खुराना जी भी आए हुए थे, और बाबा साहब तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल, आज आए थे। बाबा साहब को भी मैंने देख रहा था, बाबा साहब भी आए हुए थे। हाइब्रिड बना लो, हाइब्रिड प्रोग्राम बना लो, हाइब्रिड बनवा आई एग्री एक तरह ये विनय जी को पैसे खर्चने पड़ेंगे बड़ा स्क्रीन वगैरह लगवाने का वहाँ पे। और कल मुझे मिलेंगे, कल मैं वहाँ पे हूँ इरोज होटल पे, कल वो प्रोग्राम है IRC का सुबह। आई एम वन ऑफ द स्पीकर देयर एट इरोज होटल। तो वो शायद हाइब्रिड है क्या है नहीं है, लेकिन चाय पीने को जरूर मिलेगी मुझे, पक्की बात है। तो वो टॉपिक रखा हुआ उसके बारे में, लेट्स विल डिस्कस इट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड आई बिलीव जो हमारा इनफॉर्मल डिस्कशन है, so let's continue to have this interactive and informal discussion on this. Yes sir, yes. आज तो श्रीवास्तव साहब ने बोले अनिल जी, अब वो बिल्कुल एक श्रीवास्तव जी अपने ऑल इंडिया फेडरेशन वाले, ये भी चुप करके चश्मा लगा के बैठे रहे कल। चलिए फ्रेंड्स, लेकिन एक बात जरूर नजर आ रही है, आज फ्राइडे आफ्टरनून होने के बाद सब जैन साहब सुनना भी चाहिए कभी कभी। टी शर्ट लगा के बैठे, टी शर्ट में बैठे हैं, वो बैठे हैं तभी तो स्क्रीन ऑफ था। ऑफिस में नहीं हूँ ना। तो छुट्टियां कैसे बन रही हैं? आज तारीख 6 सितंबर को छुट्टी सीए को मिल जाए, बीवी कहेगी करते क्या हो तुम, काम करते हो सीए हो या नहीं हो? सिर्फ नौरोजी नगर जाते हैं। आज की डेट में कोई सीए क्या लेडीज या जेंट्स घर में जाके कह दे कि मैं खाली है, तो कहेंगे क्या तुम सीए हो या नहीं? पता नहीं, टैक्स ऑडिट का जमाना है, सब लोग कह रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं और सब कहते हैं कि हम 11 बजे आते हैं, 12 बजे घर आते हैं रात को, और तुम पहुंच गए 6 बजे घर, 5 बजे। हम लोग ऐसा ना, हम लोग मिलते सिर्फ नौरोजी नगर में है ना। नहीं, एक मिनट, ये खान मार्केट या नौरोजी नगर ही है ना। नहीं तो नौरोजी नगर तो ITT पहुंच गया ना खान मार्केट से। तो वही कह रहा हूँ कि हमारा एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ एक्टिविटी वाज ओनली खान मार्केट और नौरोजी नगर। एक बताऊं सर मैं आपकी लास्ट बात के ऊपर, अगर उन बंदों ने जो 11-12 बजे आते हैं और हमारी ये मीटिंग अटेंड कर ली ना, उनका घर खराब हो जाएगा। कहेंगे ऐसे बंदे ठीक हैं, ये बंदे ठीक हैं, ये सही है, जो रिलैक्स हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे बंदे तो बेकार है जो 11-12 बजे। नहीं ऐसे नहीं, सभी आते हैं, और ये जितने भी लोग बैठे हैं सब 11-12 बजे घर जाने हैं। चलिए सर, 43 BH में कितना इंटरेस्ट है लोगों का आया है? हाँ बिल्कुल आया। सो फ्रेंड, 43 सॉरी, ये सर्टिफिकेशन का काम मैंने किया ही नहीं प्रैक्टिस में कभी। तो चलिए अनिल जी कंक्लूड कर लेते हैं एक बार। प्लीज। So friends, once again I thanks in my esteemed speaker at the outset, CA Vijay Jain ji, Satish Agarwal ji in absentia, and Ashok Batra ji, Gaurav Gupta ji, and Tarun Arora ji in absentia. And I thanks you all in attending in large number. And before I send off and end the meeting, once again I greets you on to the Ganesh Chaturthi, which will start, it is tomorrow. और हमारे जो पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, क्षमा दिवस चल रहे हैं, उसके भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और क्षमा दिवस के ऊपर जो है, गिव फॉरगिवनेस एंड टेक फॉरगिवनेस, दिस इज द डिवाइन पावर ऑफ लॉर्ड महावीरा। फॉलो इट एंड एंजॉय योर गुड लाइफ, एंजॉय द टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट तो देखिए, आज की तारीख है, आज 6 तारीख है ना, 6, 7, 13, 20, 22, 33 का 2 3 अक्टूबर हो गया भैया, ठीक है। तो 3 अक्टूबर होगी, 4 अक्टूबर आएगी, 4 अक्टूबर। Fines, we'll see you in the next meeting. 4th आएगी। So see you till then. 4th October. Goodbye and have a nice time. Enjoy your cup of tea with samosa. Okay, bye. Thank you. मजे ले रहे हैं हम, चाहिए नहीं तो मजे ले रहे हैं। Okay, bye.